ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਬੈਸਟ 200 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਔਰ ਪਾर्ट 2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੀਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਸਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇ ਟੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਠਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਪੀਡੀਐਫਸ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਡੀਐਫਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ www.gilzmentor.co.in ਤੇ ਜਾਂ gilzmentortest.com ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਰਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਾर्ट ਹੋਏਗਾ और चौथा पार्ट ਤੁਹਾਨੂੰ 2 डेज बाद मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ किस स्कीम ਦੇ तहत फाइनैशियल सपोर्ट 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ प्रोवाइड ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਬਾਰ यानी वन टाइम ट्रीटमेंट ਲਈ अगर ਕਿਸੇ ਨੂੰ रेयर डिजीज़ ਕੋਈ प्रॉब्लम ਹੁੰਦੀ है। और ਇਹ जो पॉलिसी है ये नैशनल ड्राफ्ट पॉलिसी ਦੇ तहत ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, मतलब किस डिजीज़ के संबंध च ये तो डॉक्टर्स डिसाइड करनगे, बट किस स्कीम के तहत दिता जाएगा। तो दोस्तों 5 ऑप्शन तुहानूं अवेलेबल होणगे, बट मैं तुहानूं सिर्फ करैक्ट ऑप्शन दसांगा। मैं किसी भी स्टूडेंट्स के कमेंट रीड नहीं करांगा, सिर्फ मेरा फोकस होएगा कि आपां बहुत ही शॉर्ट टाइम च बेहतरीन क्वेश्चंस कवर करांगे। चलिए, ये जो होएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के तहत ये 15 ਲੱਖ रुपए दिता जाएगा। मैं दसना चाहांगा ये 15 ਲੱਖ रुपए एक बार दिते जाणगे। अगर कोई रेयर कंडीशनस है, जिमें आपां गल करिए किसी नूं लाइलाज बीमारी है, कैंसर है या कोई इदां दा ऑपरेशन होना या कोई होर कोई भयंकर बीमारी है जिसका इलाज यानी घट्टो घट्ट पैसे च संभव नहीं है। अदरवाइज ਜਿਹੜੇ भी स्टेट्स वाइज 5 ਲੱਖ रुपए सेंटर गौरमेंट द्वारा दिते जा रहे हैं आयुष्मान भारत ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी 5 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ एक इंश्योरेंस होंदा है, उस दे तहत तुसी ट्रीटमेंट करवाने हो। लेकिन इस जो स्कीम है ये बल्कि आयुष्मान भारत मंत्री जन आरोग्य जो है ना, याद नोट डाउन कर सकते हो तुसी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उस दे नॉर्म्स के मुताबिक ही दिता जाएगा। और एक खास तौर पर बीपीएल परिवार, याद रखना है कि बीपीएल परिवार या जो बिलो पॉवर्टी लाइन तो 40% जो पॉपूलेशन हैगी एलिजिबल है इस चीज़ के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज की सीरीज का दूजा क्वेश्चन है, इन्हां चों किहड़ा बैंक है जो कि अनवील्ड इंडियाज लार्जेस्ट एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग पोर्टल विद द नियर बाई लगभग 250 एपीआई, ठीक है। इन्हां चों किहड़ा बैंक आ हो दसना है कि जिहड़ा बैंक की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के तहत यानी बैंकिंग पोर्टल है वह लगभग 250 एपीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो मैं तुहानूं एक चीज़ दस देना, जे तुसीं तुक्का मारना है तो भारत के सरकारी बैंकों ते तां बिल्कुल भी ना लाओ, ये मेरी गारंटी है। और हमेशा 3 बैंकों के किस्सा रहेगा है, HDFC, ICICI और बड़ौदा नूं इन्होंने आपदे अंडर ले लिया तो एक्सिस रह गया बाहर, ठीक है। तो इस करके तुसीं चुपचाप इन्हां ते टिक कर सकते हो। तो ICICI बैंक बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। ICICI की फुल फॉर्म की होंदी है, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट रखना आ। दसना चाहांगा कि भारत का मल्टीनैशनल बैंकिंग जो फाइनैशियल सर्विस भी प्रोवाइड करवाउंदा आ है और यदि मैं कह सकदा कि इंडिया का लार्जेस्ट एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग पोर्टल है। हालांकि यदि मैंने लिंक भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन बल्कि माफ़ करना जरा, इस सैशन दे जो एडिशनल फैक्ट्स वो भी पा रखे है। लगभग मैं दसना चाहांगा कि 250 एपीआई अलोज बैंक पार्टनर कंपनी दे ने एक्रॉस ग्लोब अप साइन अप टू मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर तीजा आ। तीजे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किहड़ा बैंक है जो लगभग $88 मिलियन लोन देगा
असम वास्ते इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजैक्ट वास्ते तुहानूं पता होएगा कि उत्थे सेम की प्रॉब्लम रहिंदी है, उस दे संबंध च किहड़ा बैंक इन्ना पैसा देगा। दोस्तों याद रखना यह सिर्फ दो ही बैंक ज़्यादातर पैसा दिंदे ने और भारत सरकार दोनों बैंकों तो ही पैसा लैंदी है। पहला हुंदा है वर्ल्ड बैंक और दूजा हुंदा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ठीक है, तो इहदा जो सही आंसर होएगा वर्ल्ड बैंक बिल्कुल राइट आंसर होएगा। तुसीं नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत मजा आएगा इस सैशन दे विच। खास तौर पर गल करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने असम वास्ते वर्ल्ड बैंक तो साइन किया आ कि लगभग $88 मिलियन यह है एक अनुदान लेगा, बल्कि उस तो असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजैक्ट यानी जिन्हों AIWTP कहने हैं की करने वास्ते मॉडर्नाइज करेगा पैसेंजरस का फेरी सैक्टर असम दे विच है। खास तौर पर उन्होंने जो पानी है नदियों के सही तरीके नाल बह सके। खास तौर पर ब्रह्मपुत्र रिवर की गल करते असम है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुहानूं एक कंडीशनस पूछी जा सकती है कि तुसीं दसो भी साइन किने कीता, तो साइन किया समीर कुमार खेरे ने। समीर कुमार खेरे कौन है? एडिशनल सैकटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाई द मिस्टर जुनेद खान अहमद है, जिन्होंने कंट्री डायरैक्टर ऑफ इंडिया दे ने कौन ने अपने भारत के डायरैक्टर कौन ने, उन्होंने नाम है जुनेद कमल अहमद। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट समझावांगा और अगर जे तुहाडे दिमाग 'च सारे फैक्ट्स बैठ गए हैं तो तुसी चैलेंज कर दिओ, करंट अफेयर 'च मात नहीं खाओगे। अगला क्वेश्चन है इन्हां चों दसना कि किहदा अपॉइंटमेंट किया गया 11 मैंबर कमेटी दे कंसिस्टेड द ड्राफ्ट ऑफ नैशनल वाटर पॉलिसी वास्ते। मतलब कि किहड़ा चेयरमैन होएगा 11 मैंबर कमेटी का, कादे वास्ते ड्राफ्ट बनाया गया वा नैशनल वाटर पॉलिसी वास्ते। तो दोस्तों इसका सही आंसर होएगा डॉक्टर मिहिर शाह। डॉक्टर मिहिर शाह नोट कर लो, डॉक्टर मिहिर शाह है। ठीक है, और प्रोफैसर एट ए शिव नादार यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश दे विच ने इन्हों अपॉइंटेड किया गया है। इन्हों का अपॉइंटमेंट किया गया मैं दसना चाहांगा कादे वास्ते किया गया। 11 मैंबरस कमेटी बनाई गई ड्राफ्ट नैशनल वाटर पॉलिसी वास्ते। इन्होंने सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट 6 महीनों के विच यानी एक बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस वास्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सेशन शेयर कर दो यार, और मेरी गारंटी है तुसी बहुत ज़्यादा प्यार गिल्ज मेंटोर नूं दिता है, इदां ही इस चैनल नूं प्यार देना है और शेयर करने च कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सएप धुआं उठा दो प्लीज़। ठीक है, विच कंट्री हैज ए अपॉइंटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा वा मिखेल, नोट रखो मिखेल व्लादिमिरोच उन्हों का नाम है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 जनवरी 2020। देखो एक ट्रिक दसदा है, व्लादिमीर पुतिन का नाम सब जानते हैं ना, रशिया के कौन ने, रशिया के कौन ने प्रेजिडेंट ने, और व्लादिमीर इत्थे तुहानूं नाम मिल गया तो यदा मतलब है कंसर्न रशिया नाल ही है। नोट कर लो, इदां दी ट्रिक्स ने, ये शॉर्ट फंडे हुंदे ने जो तुहाडे दिमाग 'च बैठ जाणगे। इन्हां नूं अप्रूवड कीता है रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। इन्हां दा प्रपोजल बनाया सीगा किदा निखेल व्लादिमिरोविच है ने हैड ऑफ फेडरल ऑफ टैक्स सर्विसेज दे ने नैक्सट प्रधानमंत्री वास्ते। ये किहनूं करनगे? दमित्री। ठीक है, इन्हां दा नाम रखना दमित्री। जो मदवेदेव है उन्होंने रिजाइन करता इस पोस्ट तो इन्हां दा नाम रिकमेंड किया गया वा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर हैगा 6वां क्वेश्चन बहुत ही सोहना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस खिडारी का क्रिकेटर का नाम दसना है जिन्हें वनडे का मतलब देखो, वनडे का मतलब देखो, वनडे एक दिवसीय इंटरनेशनल जो एक दिवसीय मैच होंगे ने जिन्होंने 50-50 ओवर की गल करते हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर द फर्स्ट टाइम इन 16th एडिशन ICC अवार्ड 2019। पहली गल है फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार है। एडिशन किनवा वा? 16वां 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ICC ਦਾ मतलब ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਬਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਲਿए और ये प्रेजिडेंट कौन ने? शशांक मनोहर। क्लीयर है इत्थों तक। चलिए हुण गल करते किहड़ा प्लेयर है। धोनी ते तां टिक कर नहीं सकते हो। भारत क्रिकेट दे विच दो ही मेन सितारे ने जिहड़े कि हमेशा उभरते हुए ने, किहड़े ने? विराट कोहली और रोहित गुरुनाथ शर्मा यानी रोहित शर्मा। खास तौर पर गल करते हैं रोहित शर्मा ने ही बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए ने। हालांकि कोहली एक अलग प्लेयर है लेकिन रोहित शर्मा एक अलग प्लेयर है, इस करके रोहित शर्मा का नाम इत्थे लिया गया वा। याद रखना है रोहित शर्मा नूं 2019 का
यानी बेस्ट प्लेयर ICC तरफों नवाजिया गया वा। ये तुसीं पेपर के एग्जाम के हिसाब नाल याद रखना है। और अगर तुहानूं क्रिकेट के संबंध च याद आवे तो भी याद रखना है कि 22 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 दे विच न्यूजीलैंड नूं हरा के अपने नाम रिकॉर्ड बनाया। ये भी तुहानूं पूछा जा सकता है। इस तो बाद पूछा जा सकता है कि अंडर 19 दे विच भारतीय टीम बहुत सब तो ज़्यादा मजबूत टीम है जो कि बांग्लादेश तो फाइनल मैच हार चुकी है। ठीक है, याद रखना है कि 170 दौड़ां का पिछा करते हुए बांग्लादेश ने यह 7 विकटां ते स्कोर बना लिया सीगा। याद रखना है मेरे दोस्तों कि एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है कि इत्थे गल करते हैं कि बांग्लादेश ने अज तक के इतिहास च पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जितया आ। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां। 7वां नंबर क्वेश्चन तुहानूं की पूछा गया वा, इन्हां च दसना कि हैड ऑफ स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम दा किहड़ा आ जो कि प्रोब्ड द 1984 एंटी सिख, मतलब कि तुहानूं पता होएगा 1984 दंगियां बारे उन्हां दे केस के संबंध च नवीं SIT बनाई गई है। इहदे च दसना वा इन्हां दा हैड कौन है, तो दसना चाहांगा कि ढींगड़ा। ठीक है, हाँ जी ढींगड़ा। ठीक है, इन्हां दा नाम याद रखना SN ढींगड़ा। पेपर के संबंध में मैं तुहानूं दसना चाहांगा सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। SN ढींगड़ा कौन ने? ये रिटायर जज ने, कित्थों दे? दिल्ली हाई कोर्ट दे जस्टिस रहे ने ये SN ढींगड़ा। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्हां दा नाम अनाउंस कीता सीगा। दसना चाहांगा लगभग मैं दसना चाहांगा स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्होंने इन्वेस्टिगेटेड 186 केसेस ऑन द 1984 एंटी सिख जो अपने होया सीगा उहदे संबंध च इन्हां दा नाम प्रपोजन किया गया वा। इस तो पहला सोलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहरा ने अपीयरिंग किया सीगा बिहाफ ऑफ द सेंटर कंपैरिजन द चीफ जस्टिस ऑफ बोबडे साहब नूं और जस्टिस ऑफ R गवाई और सूर्यकांत नूं एक्सेप्ट द SIT रिकमेंडेशनस के तौर पर इन्हां दा नाम सब तो ज़्यादा लिया गया वा। ठीक है, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इन्हों इसका चीफ बनाया गया वा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की गल कर लेने। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इन्हां चों दसना है कि एयरफोर्स स्टेशन किहड़ा है भारत का जो पहला यानी सुखोई 30 फाइटर जो स्क्वाड्रन विल बी इंडक्टेड होएगा। दोस्तों 5 ऑप्शनस तुहानूं अवेलेबल दिते गए हैं। 5 चों सब तो बेस्ट ऑप्शन दसना वा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर चौथा TN का मतलब तमिलनाडु है। मतलब क्या है? थंजूर, याद रखना है थंजावुर कित्थे ने? तमिलनाडु दे विच है। ये सवाल की है? सवाल है कि केड़ा एयरफोर्स स्टेशन है भारत इंडियाज फर्स्ट सुखोई 30 फाइटर स्क्वाड्रन विल बी इंडक्टेड, तो मतलब किहड़ी जगह तो होएगा? वो होएगा दोस्तों थंजावुर तमिलनाडु तो। दसना चाहांगा कि चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स यानी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इहदा इंडक्शन किया सैरेमनी ऑफ सुखोई 30 MKIS, मतलब जिन्हों शॉर्ट फॉर्म च आप SU-30 भी कह दिंदे हैं, स्क्वाड्रन इन द सदਰਨ स्काई। ये रिप्लेस किनू करेगा? रिप्लेस करेगा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के कहने के मुताबिक यह रिप्लेस करके किसनू रिप्लेस करेगा? यह किसनू? SU-30 MKI नू रिप्लेस करके 30 MKSI जो कि इत्थों की मैं गल दसांगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंडक्टेड करेगा। और यदी पूर्ण तौर पर जानकारी दी सीगी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च पूछा जा सकता है कि राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी किहड़ी है, इन्हां दा लोक सभा का निर्वाचन क्षेत्र किहड़ा, ते लखनऊ तुसीं याद रखना है। ठीक है, चलिए हुण तुसीं मैनूं एक एग्जाम दे मैं तुहानूं तो क्वेश्चन पूछ रहा वां हिंदुस्तान दे विच सब तो ज़्यादा किस लोक सभा क्षेत्र तो या किस शहर तो, चलिए इदां पुछदे किस शहर तो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो तुसीं मैनूं कमेंट करके दसना सर इहदा की आंसर होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाम दसना इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है दैट वाज लॉन्च फ्रॉम जिनेवा, बल्कि गुआना माफ़ करना स्पेस सेंटर फ्रेंच गुआना साउथ अमेरिका टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो इस दे संबंध में मैं तुहानूं दसना चाहांगा GSA मतलब आप GSAT-30 कह सकते हैं। याद रखना है GSAT-30 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। बहुत अच्छी है गाइज, इदा ही तुहाडे आंसर्स होने चाहिए हैं। प्लीज़ सैशन शेयर करते चलो यार, नाल शेयर करते चलो, धुआं ठा दो ताकि सारे स्टूडेंट्स नूं पता चल जाए। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कोले वक्त की कमी बहुत ज़्यादा होंदी है, लेकिन तुहानूं मैनेज करना पएगा। इस टाइम तुहाडे कोई भी यूनीवर्सिटी एग्जाम्स नहीं है,
बिल्कुल फ्री और एकदम जबरदस्त तरीके की तैयारी करो। पटवारी नोटिफिकेशन नाल ही कानूगो नोटिफिकेशन धड़ल्ले वांगू आ जाएगा, लेकिन थोड़ी तैयारी अब सब तो ज़्यादा एडवांस होनी लाजमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 10वां। नाम दसना उस पिंड का जिहड़ा कि उत्तर प्रदेश का हैगा, जिहड़ा पहला मॉडल स्पोर्ट विलेज बनया हैगा आदर्श खेल ग्राम बल्कि प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी के तहत गाजियाबाद दे विच, ठीक है। और उंज भी नाम इहदा उत्तर प्रदेश दे विच दिता गया। तो दसना चाहांगा कि यह हमेशा इदां दी चीज़ां करने वास्ते किहड़े-किहड़े लोग हुंदे ने कि जिहड़े अपने मैं तुसीं एग्जाम्पल नोट रखो, देखो ट्रिक भी नोट रखो, दोनों चीज़ां नोट रखो। इत्थे 5 ऑप्शन दिते गए ने, पंजां चों तुसीं टिक किवें करोगे। देखो उस पिंड का नाम दसना है, किहड़े पिंड ते कित्थों दा पिंड है, उत्तर प्रदेश का है। काहदे वास्ते है, इंडियाज फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट विलेज, मतलब कि इंडिया जो भारत खेलो है ना या आदर्श खेल ग्राम है उहदे तहत। और दूजी गल है कि जो इंडियन खेलो प्रोग्राम है उहदे तहत सब तो ज़्यादा स्पोर्ट्स परसन ने इत्थों दे, ठीक है। इस दे तहत प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी जिन्हों IMT कहने हैं, गाजियाबाद यूपी, अलॉन्ग विद नॉन गवर्नमेंटल जिन्हों आप NGO कहने स्पोर्ट्स, तो यदा नाम की ए वे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों ये बहादुर बंदे ही काम करते हैं, इस करके आप बहादुरपुर एंड खेड़ी विरां याद रखना है, खेड़ी विरां, ये दो नाम याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास तौर पर एडिशनल फैक्ट की कहते हैं, ये दो पिंड ने, पहले का नाम है बहादुरपुर, दूजे का नाम है खेड़ी विरां। ये दोनों उत्तर प्रदेश के ने, ये बन चुके हैं, यानी इंडियाज फर्स्ट मॉडल विलेज स्पोर्ट्स विलेज है। पार्ट ऑफ किदा आ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी IMT गाजियाबाद का आ, ठीक है। किहदे अंडर है, आदर्श खेल ग्राम प्रोग्राम के अंडर है, जो कि एक एसोसीएशन विद द NGO, मतलब नो NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ दे तहत ये पिंड बने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने फटाफट। आप क्वेश्चन नंबर 11वां, जे तुहानूं सवाल चंगे लग रहे, सोहणे लग रहे हैं, बड़ा प्यार आ रहा है और तुहानूं लग रहा है कि वाकई ही साडे लई असरदार अते साडे लई लाभदायक ने, तो बस फिर तुसीं काम की करना, मैनूं कहण दी जरूरत बिल्कुल भी ना पवे। वट इज़ द ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट, मतलब GDP भारत की दसनी है 2019-20 के मुताबिक, जो कि यूनाइटेड नेशन UN के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पैक्ट्स 2020 रिपोर्ट के मुताबिक तुसीं दसना है कि कितनी होएगी, तो इसका आंसर होएगा 5.7%। बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे है, वेरी गुड गाइस, बस शेयर कर दे चलो यार फटाफट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, 12वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो आंसर होएगा, ਇਹਦਾ आंसर होएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब थीम ਇਹਦਾ नाम की रखा गया वा, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। 10वां एडिशन सीगा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 होस्ट किया सीगा क्या कहते हैं उसको, मसदार रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, ये अबू धाबी च होया सीगा, नैशनल एग्जीबिशन सेंटर इन अबू धाबी होया सीगा। दसना चाहांगा कि ये मुताबिक 2020 ਲਈ जो थीम बनाई गई है उन्होंने रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ये तुहानूं पेपर च आ सकता है, क्योंकि इदां दे अनएक्सपैक्टड क्वेश्चनस PSPCL आए थे, और बाद दे विच एग्जाम जो सिर ते आ गया ना, बहुत स्टूडेंट्स आए जो मच्छी नूं पानी चों बाहर कढ़ दो किवें किवें करदी है, फिर गलफड़े अपने मारदी है ना, किवें फड़फड़ाउंदी है, उदां फड़फड़ाउंदे सी स्टूडेंट्स। ऐ तुहाडा दिल ना धक 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 करदा सीगा। और जे बहुते स्टूडेंट्स वासियां लैंदे ने, ख्वाब देखते हैं कि असीं पंजाब पटवारी च, तुसीं सोचो कि तुसीं पढ़दे हो कि तुहानूं इत्थे डिजर्व कर, तुसीं अपने आप ना सोचो तुसीं किन्ना पढ़ रहे हो, तुहानूं कोई चीज़ कित्थों तक आउंदी है कि तुसीं डिजर्व करदे हो। देखो किस्मत दे बनाउणी पैंदी है, तुसीं ना सोचो कि हाँ फॉर्म भर दईए की पता किस्मत सानूं नौकरी दे देवे, इदां दा पॉसीबल नहीं है। जे किस्मत साडी इदां चंगी होवे तो तुहानूं घरे बैठे नूं प्रधानमंत्री नहीं नवाजदे कोई। बहुते स्टूडेंट्स मैं इदां ख्यालों दे विच सुणदा आ, उन्हां दी गल्लां बातां मेरे नाल शेयर करदे ने अपनी पर्सनल गल्लां। सर हो सकता है जी किस्मत पार लंघा दे, दोस्तों कोई किस्मत किसी की पार नहीं लंघाउंदी, किस्मत बनाउणी पैंदी है। मैं पहला भी कहा सीगा, जिद्दां मोदी ने तो चलो देश के प्रधानमंत्री साहब ने तो एक अलग तरीके का कहा सीगा कि अच्छे दिन आएंगे, पर मैं तो मेरा कहना इदां है किसी के अच्छे दिन नहीं आउंदे, अच्छे दिन लियाने पैंदे ने, राइट है। तो वर्क हार्ड, अपने गोल ਲਈ मेहनत करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुहानूं टाल दे, तुहानूं इग्नोर कर दे। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द भारतीय आर्मी, और दूसरा हैगा कि नॉर्दर्न ईस्टर्न थिएटर
राइट रिसेंटली दसना चाहांगा कि इन्हां दा सही आंसर की है। तो तुसीं याद रखना है विंग्ड रेडर की नाम होएगा, विंग्ड रेडर ऑप्शन नंबर दूजा बिल्कुल करैक्ट होएगा, विंग्ड रेडर। दसना चाहांगा मेरे दोस्तों AIA मतलब इंडियन आर्मी कंडक्ट किया सीगा बहुत बड़ा एयरबोर्न एक्सरसाइज हुई सी जिहदा नाम दिता गया सीगा विंग्ड रेडर। ये एक्सरसाइज कंप्राइज की गई सी लगभग 500 ज़्यादा इहदे सैनिकां ने भाग लिया सीगा, स्पैशल फोर्स ट्रूप्स ने जिहड़े ठीक है तोपां दे नाल, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो थिएटर है ठीक है, और इन्वॉल्व ऑल काइंड सारे तरीके के जो एयरपोर्ट जो प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन एयरफोर्स है, और इन्हां दा नेम है विंग्ड रेडर इन्हू चूज किया गया डू टू मल्टी नैशनल गल करिए आपां या बहुत सारे होर भी ने उन्हां दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये एक्सरसाइज जो है कंडक्टेड की गई है। सो दैट तुहानू इन्नी चीज़ याद रखनी है कि अगर लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी तो नाम दसो तो विंग्ड रेडर तुसीं नाम याद रखना है ठीक है। चलिए अज दे सीरीज का 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन हॉनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑनर ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑनर अपने भारत का की भारत रत्न है, उदा ही ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये किहनूं दिता गया वा तो तुसीं याद रखना है किरण ठीक है, कौन है किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ नूं दिता गया वा ठीक है। तो यह अवार्ड दिता गया किस करके दिता गया आप इसकी डिटेल चैक कर लेने हैं, इसकी डिटेल की कहती है जरा नोट डाउन कर सकते हो, मेरी गल सुन सकते हो कि आस्ट्रेलिया ने कन्फर्म किया इस चीज़ वास्ते कि हाईएस्ट जो ऑस्ट्रेलियन सिविलियन ऑनर है वह बल्कि दिता जाएगा किरण मजूमदार शॉ नूं। ये फाउंडर ते चेयरमैन ऑफ बायो फार्मा एक्चुअली कंपनी दे ये कौन ने, ये फाउंडर अते चेयरमैन ने ठीक है। याद रखने अपॉइंटेड बाय द honorary member in the general division of order of Australia by the Australian High Commissioner to Indian Mrs. क्या ना कहते हरिंदर सिद्धू एट ए इकोनॉमी लीला प्लेस बेंगलुरु के तहत और कर्नाटका दे विच यह दिता जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता, तुसीं किरण मजूमदार नाम याद रखना है, बाकी एडिशनल फैक्ट तुसीं साडे अलग तो वैबसाइट तो भी रीड आउट कर सकते हो। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक है, नवे आर्मी स्टाफ कड़े ने तो सतिंदर कुमार सैनी नाम याद रख लो क्योंकि सैनी अज तक बहुत ज़्यादा फेमस ने ठीक है। खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के गल करिए तो सैनी उही जिहड़े आस्ट्रेलिया बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूजे वनडे के न्यूजीलैंड नूं हार के कगार ते लै गया सीगा, लेकिन थोड़ी जी काली कर गए। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 28th एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020, मतलब थीम दसनी है जो कि 28वां एडिशन होया है दिल्ली दे विच वर्ल्ड बुक फेयर 2020 का जो किया गया वा। दोस्तों ਇਹਦਾ जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है यार, सोहना जिहा क्वेश्चन है, ਇਹਦਾ दूजा आंसर होएगा गांधी द राइटर्स राइटर, द गांधी राइटर्स राइटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ आवे क्योंकि 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 बहुत सारिया चीज़ां है हाल ही दे भारतीय सरकार द्वारा जो मुद्दा छिड़िया से गांधी के मैटर से, क्योंकि स्टेटमेंट इधर उधर आते रहते हैं तो तुसीं याद रखियो। इनोग्रेटेड किया सीगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट MHRD मिनिस्टर उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है रमेश पोखरियाल निशांक ठीक है। ये थीम दी गई है गांधी द राइटर्स राइटर, ये सैलीब्रेटिंग 150 साल का महात्मा गांधी 2013 तो यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती आ रही है। गल दसना चाहांगा कि नैशनल बुक ट्रस्ट NBT एसोसीएशन द्वारा इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो ITPO कहने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्हां द्वारा यह कंडक्ट कराया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। what is the rank of India as per the World Economy Forum report Global Social Mobility Report 2020 Equality Opportunity and the New Economy Imperative ठीक है। तो ये मुताबिक तुसी दसना है कि भारतीय रैंक की होएगी। दोस्तों यह रैंक पिछले साल भी यथावत सी और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो 76 नंबर पर होएगी ठीक है। गल करते हैं कादी सवाल एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक यानी भारत की रैंक किहड़ी होएगी, तो दोस्तों 76 होएगी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है किहड़ी भारतीय सिटी ठीक है कनैक्टेड विद द तुहानूं दे रखा है कि विराटनगर ऑफ द नेपाल थ्रू द सैकेंड इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट जो बनाई गई है, इसका हाल ही उद्घाटन किया सीगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलॉन्ग विद द नेपाल के प्रधानमंत्री उन्होंने नाम सीगा
श्री खाड़गा प्रसाद शर्मा ओली, खाड़गा प्रसाद यानी KP शर्मा ओली, ये KPS भी नाम बोलिया जाता है, KPS गिल नहीं बल्कि KPS, ठीक है, KPS यानी खाड़गा प्रसाद शर्मा ओली, इन्होंने दोनों ने मिलके इहदा उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये हैगा याद रखना है जोगबाणी ना कि जगबाणी, जोगबाणी ये कित्थे ने, जोगबाणी बिहार दे विच ने, ये तुसीं याद रखना है। खास तौर पर तुहानूं मैं इहदे एडिशनल फैक्ट अगर याद करावां तो यह दोस्तों वो शर्मा जॉइंटली इनोग्रेटेड किया, सैकेंड इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट बनाई गई है जोगबणी, जो कि यह विराटनगर ऑफ इंडिया यानी बिहार स्टेट दे विच मौजूद ने। दसना चाहांगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज चल रही है खास तौर पर PPSC लिए और एजुकेशन के संबंध च PPSC जो हैडमास्टर प्रिंसीपल और टीचर्स की रिक्रूटमेंट है उन्होंने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, और ये नाल पंजाब पुलिस के पेपर के संबंध च होएगी, और चाहे तुहाडा पंजाब पटवारी भी क्यों नहीं है। सिटी का नाम दसना है जिहड़ी कि हाँ बनने जा रही है जुडिशल कैपिटल आंध्र प्रदेश ऑफ आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डिपार्टमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल 2020 गेट्स अप्रूवल। तो दोस्तों ये संबंध च 5 ऑप्शन तुहानूं अवेलेबल दिते गए हैं, तो दसना चाहांगे दा सही आंसर की होएगा कुरनूल, बिल्कुल राइट आंसर है। ये पहला भी आप डिस्कस कर चुके हैं। कुरनूल कित्थे ने, आंध्र प्रदेश AP गवर्नमेंट ने पास किया है आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डिवेलपमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल 2020 के तहत ये ट्राई कैपिटल सिस्टम हैगा या ये बिल प्रपोज बनाएगा। विशाखापट्टनम एज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती एज द लैजिस्लेटिव कैपिटल एंड कुरनूल एज द जुडिशल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अज तक की सीरीज का सब तो सोहना क्वेश्चन है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव डिपार्टमेंट ये बिल 2020 के पास किया इन्होंने, की किया इन्होंने विशाखापट्टनम नूं तां यह की बनाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाना चाहते हैं विशाखापट्टनम। अमरावती नूं की करना चाहते हैं, लैजिस्लेटिव कैपिटल, मतलब विधानिक जो इन्हां दी कैपिटल रहेगी, जो जिथे रूल बनाने ने वह रहेगी इन्हां दी अमरावती। अते कुरनूल नूं यह जुडिशल कैपिटल आंध्र प्रदेश बनाउणगे। तो यह भी तुसीं याद रखना, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसक्राइब कर दो यार, इन्ना काम जरूर करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP दसना आ 2019 के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के मुताबिक, जिन्होंने रिवाइज किया है 6.1% टू जनवरी 2020 लिए किन्ने की है भैया, जल्दी जल्दी दसो मैंने की आंसर होएगा। तो 4.8%, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है ये चीज़ां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, एग्जाम च पूछिया जा सकती हैं कि IMF द्वारा दसो कि भारत की GDP का अनुमान कितना लाया, तो 4.8% तुसीं अपना आंसर दे सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन्हां नूं अपॉइंटेड किया गया है मैनेजिंग डायरैक्टर, मतलब MD किहदे लई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द पीरियड ऑफ 3 साल जनवरी 2020, 3 साल किन्हां नूं किया गया वा। तो दोस्तों इन्हां दा नाम हैगा, याद रखना है छल्ला, ठीक है, छल्ला श्री निवासुलु सेठी, ठीक है। तो चल्ला नहीं छल्ला, ठीक है। तो याद रखना है, वैसे तो चल्ला का नाम आता है साउथ दे ने ये सेठी, ठीक है। चोका छाला याद रखना। एक ना साउथ के जिन्ने भी परसन होंगे ने खास तौर पर इन्होंने सरनेम पहला आ जाता है, अपने थोड़ा बाद चलाते हैं। किसी का नाम है अगर जिमें कि आप गल करिए जोबन सिंह सिद्धू है, ठीक है। किसी का नाम है महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा है। तो दरअसल अंत के विच सरनेम होंगे, सरनेम पहला यूज करते हैं, ठीक है। तो तुसीं ये भी याद रखियो। चलिए अगला क्वेश्चन हैगा, किन्हां नूं अपॉइंटेड किया गया MD डायरैक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CO ऑफ बड़ौदा बैंक दे, ठीक है। बड़ौदा बैंक दे किन्हां नूं किया गया वा। तो बड़ौदा बैंक के संबंध च दसना चाहांगा संजीव चड्डा, नाम याद रखना है संजीव चड्डा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 5वां आ जाएगा संजीव चड्डा, बिल्कुल राइट है। बड़ौदा बैंक के इन्हों की बनाया गया, संजीव चड्डा नूं अपॉइंटेड किया गया MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा के। ये जनवरी के गल हैगी है। इन्होंने इस तो पहले डिप्टी DMD मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरैक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेवा निभा चुके हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया सीगा जया कुमार ने, जिन्हों का टर्नओवर एंड होया सी 1 साल एक्सटेंशन किया गया सीगा। और याद दसना चाहांगा बहुत सारे फैक्ट्स है मेरे को, लेकिन इन्ने ज़्यादा फैक्ट्स है कि मैं तुहाडियां तुहाडे दिमाग दे विच धक्के मार मार के ना एक पासों हत्थ नाल मैं चीज़ां फसा दांगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 23वां अज की सीरीज़ का। बहुत सारी सीरीज़ इदां कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। मज़ेदार सैशन चल रहा है। नाम दसना भारतीय क्रिकेटर का,
ਹੂ ਬਿਕਮ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ 11,000 ਰਨ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 5,000 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ODI ਐਜ਼ ਏ ਸਕੀਪਰ ਬਲਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ MS ਧੋਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, फटाफट तुसीं टिक करके अगले क्वेश्चन ते वध सकते हो। क्वेश्चन नंबर नैक्सट है, नाम दसना वा भारतीय एयरपोर्ट दा इन इंडिया एक्वायर्ड द डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट जिन्हों आपां डेयर कह दिंदे आ फ्रॉम KUNZ टू रिकवर डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट अप टू कोड F कैटेगरी एंड एनेजिंग फास्टेज इक्विपमेंट ऑपरेशंस। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर की होएगा एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड F कैटेगरी एंड एनेबलिंग फास्टर रिजॉर्प्शंस ऑफ ऑपरेशंस दे संबंध च पूछा गया थानू। तो इन्हां दा जो आंसर होएगा याद रखना है कॉम्पे गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कॉम्पे गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आप कह सकते हैं। एग्रीमेंट साइन किया गया बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्हों BAIL कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे है। बल्कि चलिए चलिए शाबाश गाइस, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटका विखे, बिल्कुल 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 वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी रिसेंटली। मतलब कि इंटरनेशनल याद रखना है, नॉट इंटरनेशनल, दिस इज इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, और दसना वा कि इन्हां चों किहड़ा स्टेट का सही आंसर होएगा। तो दोस्तों इहदा जो आंसर है वो है उत्तराखंड। किहड़ा होएगा? उत्तराखंड होएगा। उत्तराखंड की सरकार ने यह बनाया है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। इन्होंने की किया है? पॉलिसी लीज एग्रीकल्चर लैंड लई बनाई है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ राष्ट्रपति भवन। स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है ऑर्डर अंडर द लीजिंग पॉलिसी इंस्टीड ऑफ गिविंग लैंड ऑन 30 ईयर लीज के मुताबिक इन्होंने दिता है। इस तो पहला की सीगा कि फार्मर सीगे ना वो अपनी जमीन जिवें हुण आपां गल करदे पंजाब हरियाणा राजस्थान नीयर अबाउट ठेके ते दे दिंदे सीगे, हुण अपनी जमीन यह बल्कि रेंट ते दे सकते हैं और रेंट ते लै सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स ने, सो दैट बस आप इन्ने फैक्ट्स याद रखने जो अपने एग्जाम के संबंध च जो चीज़ां याद रहनियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ग्रुप ऑफ 77 फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन रिसेंटली। तो इसका जो आंसर की आएगा? गुआना आएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट है, गुआना बिल्कुल राइट आंसर होएगा। गुआना टेक्स ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द ग्रुप ऑफ द 77 2020 के संबंध च एजूम किया जा रहा है कि चेयरमैनशिप ऑफ ग्रुप जिहड़ा हैगा आ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की गल है, बल्कि UN ने सैलीब्रेट किया 75वां एनिवर्सरी 2022 के अंदर कि G77 इज द लार्जेस्ट बल्कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज इन द UN है। सो दैट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट और एडिशनल फैक्ट्स ये जरूरी याद रखने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्फर्ट किनू किया गया चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2019। मतलब सोशल वेलफेयर जिन्होंने आप कह सकते हैं इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय द फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसेंटली। तो चलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हो सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय द फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसेंटली। तो दोस्तों इन्हां दे संबंध च 5 ऑप्शनस दिते गए ने, लेकिन याद रखना है कि हेमंत सोरेन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हेमंत सोरेन ऑप्शन नंबर दूजा है। हेमंत सोरेन झारखंड के जो CM है, हेमंत जो तुहानूं पता होएगा शिबू सोरेन है या हेमंत सोरेन है, इन्होंने कन्फर्ड किया गया चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2019 कादे वास्ते? फॉर सोशल वेलफेयर फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने फंक्शन एट ए न्यू दिल्ली। अवार्ड कंट्रीब्यूशन किया गया सीगा। ठीक है, हेमंत फॉर हिज वर्क इन द बल्कि बारहट एंड दुमका असैंबली कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने किया सीगा। दसना चाहांगा श्री मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली नूं ये दिता जा चुका है। ठीक है, अदर अवार्ड है श्री अनुराग ठाकुर है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो फाइनेंस मिनिस्टर कॉरपोरेट अफेयर्स ने सोशल वेलफेयर ने। ठीक है, ये कितों के ने? ये हिमाचल प्रदेश तो ने।
ठीक है। और इस तो इलावा आ गया श्री आचार्य बालकृष्णन पतंजलि सोशल ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਔਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਾ ਵੈਨਕਟ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਭਾਰਤ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਓਬਰੋਏ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਖੋੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੂ ਅਰਵਿੰਦ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਵਿਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਊਂਸਲ that will provide the measures to build a strong ecosystem for the new innovation and startups in India। न्यू स्टार्टअप इन इंडिया के तहत पीयूष याद रखना है, पीयूष गोयल याद रखना है, पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर तीजा आएगा, या पीयूष वेद प्रकाश गोयल भी तुसी कह सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो की गई है, चेयर्ड बाई किहदे द्वारा किया जाएगा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो पहला की रेल मिनिस्टर सीगे, उन्हों का नाम सीगा, बल्कि जरा माफ़ करना हुण प्रेजेंट टाइम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेल है नाले, इन्हां दा नाम है पीयूष वेद प्रकाश गोयल है, ठीक है। तो याद रखना ये इन्हां दे चेयरमैन ने। और एम की है, बल्कि काउंसल दा एम हैगा इनक्रीज जो ईकोसिस्टम है ना, मतलब इनक्रीज द ईकोसिस्टम ग्रोथ और जनरेट करना लार्ज स्केल ते इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन हैगा, नेम दसना उस फर्म दा, उस फर्म का नाम दसना है जिन्हें इक्वायर्ड किया उबेर ईट्स वैल्यूड एट अबाउट लगभग 350 मिलियन, मैं कह सकता कि 2485 करोड़ 2485 करोड़ रुपया लगभग रिसेंटली उस फर्म का नाम की होएगा, तो इसका नाम है जोमैटो, ठीक है। तुहानूं पता होएगा कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट रही सीगी जोमैटो, और इन्होंने रेस्टोरेंट है और लगभग ग्रेगरेट मैं कहांगा कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप एक्वायर्ड किया उबेर दे नाल, इन्होंने फूड डिलीवरी बिजनेस इन इंडिया और उबेर ईट्स के संबंध च ऑल स्टॉक डील इन्हों को अवेलेबल रही है, लगभग इन्हों की डील हुई है वह $350 मिलियन, मैं कह सकता कि 2485 करोड़ रुपए की समथिंग ये डील हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, किहड़ी कंट्री होएगी वाज अफेक्टेड बाय द नोवल, चलिए विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय द नोवल कोरोना वायरस रिसेंटली। कोरोना वायरस तुहानूं पता होएगा कित्थों चलिया, तो बस इहदा अखां बंद करके टिक कर दो आंसर, चाइना, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे है प्यारे बच्चों, याद रखना यार, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस की देखो पहचान के संबंध में मैं तुहानूं कुछ फैक्ट्स दसना चाहांगा कि अगर तुहानूं कोल्ड रेगूलर है और कोल्ड दे नाल तुहानूं कफ भी है और कफ दे नाल तुहानूं साह लैण च प्रॉब्लम है, ठीक है, और खास तौर पर तुसी बल्कि ये तो इंडियन भारत दे विच देखो अपने जिहड़ियां बीमारियां अपने मौसम के हिसाब नाल हुंदियां, जिवें आपां आम दिहाती क्षेत्र दे जो खास तौर पर आपां पेंडू क्षेत्र चों अगर आपां बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपां इस चीज़ नूं कह दिंदे हैं कि भाई जांदी जांदी ठंड रगड़ गई, या जांदी ठंड या आउंदी ठंड, एक कहावत बनी है, जांदी गर्मी या आउंदी गर्मी। या आपां दूसरे पर सिस्टम नाल देखिए थोड़ा जा, अगर आपां इहनूं आपां लवांगे कि जिवें आपां रूरल चों निकल के अगर आप शहरीकरण च जावांगे तो शहरीकरण च इहनूं कह दिंदे कि वैदर के मुताबिक ये बीमारियां अपने हिंदुस्तान च फैलदियां, लेकिन लाइलाज बीमारी है जिहड़ी खास तौर पर यह बाहरों फैलती है, ठीक है। तो यह जिहड़ी हैगी है, अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी रिलेटिव अगर बिलोंग करता है चाइना तो आया है या उधर के किसी संपर्क चों आया, तो उसनूं पहला अपना सिंपल टैसट वास्ते नीयर अबाउट किसी न किसी गौरमेंट हॉस्पिटल च जाना चाहिए, ताकि यह किसी की टच च दूजे नूं प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। चलिए क्योंकि यदि एक स्क्रीनिंग की जाती है, बल्कि वैसे ही की जाती है, हुण तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहता है कि जो भी चाइना च आउंदा है, ठीक है, टेक ओवर हुंदा है, तो इत्थे इंटर करते सार ही मुंबई दे विच महाराष्ट्र है, कैलकाटा है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है और तेलंगाना है और कोचीन केरला की गल है और दिल्ली, इत्थे सब की पहला स्क्रीनिंग हुंदी है, उस तो बाद ही उन्होंने अगे भेजा जाता। अगर किसी दे विच किसी प्रकार का कोई लक्षण पाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होएगा, फिर ही उन्होंने अगे भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द न्यूली मर्ज यूनियन टेरिटरी यूटी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव।
ये रट्टा मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर च आना ही आना है। देखो मर्ज कर दिता गया है, किनू किनू मर्ज कर दिता गया है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दियोन एंड द्वीप नूं, इन्हां दी इक्को कैपिटल होएगी और उहदा नाम होएगा दमन। ठीक है, दमन याद रखना है। पार्लीमेंट च बिल पास किया गया सीगा कि 2 यूनियन टैरेटरी नूं मर्ज करना है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली नूं। सिंगल यूटी बना दिता गया है CCEA, ठीक है, और अप्रूव्ड कर दिता गया है, प्रोपोज्ड अमेंडमेंट कर दिता गया, एक्सटेंशन रिपील कादे तहत रेगुलेशन डीलिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मुताबिक वैल्यू एडिड की गई है इस संबंध च। और यह एग्जाम च पूछा जा सकता तुहानूं कि कैपिटल की होएगी, तो तुसीं दस सकते हो। बल्कि मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि मैं इत्थे प्रोपरली तुहानूं फैक्ट्स दे रखे ने, ये तुसीं अच्छे तरीके नाल रीड आउट कर सकते हो। आ देखो करंट एक्ट की कहंदा आ, नेम आफ्टर द बीइंग ऑफ अमेंडमेंट रिपील एक्सप्रेस सेंटर गुड्स एंड सर्विस 2017 के मुताबिक की होएगा, और ये संबंध च पूरी जानकारी तुहानूं डिटेल वाइज मिल जाएगी। ठीक है, ये साडी वैबसाइट तो तुसीं लै सकते हो। और जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने, तुसीं खास तौर पर पर्टिकुलर सैशन जरूर अटेंड करिया करो, क्योंकि हो सकता है तुहानूं थोड़ा देर नाइट कर लो, हाफ होन देख लो, हाफ बाद देख सकते हो, लेकिन जरूरी ये है। चलिए, वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिन्हां दा नाम है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, इनोग्रेटेड किया इन्होंने फस्ट कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, जिन्हों MGICC नाम दिता गया वा। तो तुसीं याद रखना है दोस्तों, ये कई चीज़ां इंपॉर्टेंट ने। तो यदा जो सही आंसर आएगा वो होएगा नाइजर। ठीक है, नॉट ए नाइजीरिया, नाइजर है ये। ठीक है, तो याद रखना है कित्थे, नाइजर। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल मतलब कि विदेश मंत्री कौन ने, सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्हों ने नाइजीरियन प्रेजिडेंट के नाम, उन्होंने नाम है महामुदु, उन्होंने इनोग्रेटेड किया, उहदा उद्घाटन किया। पहला कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका नेमली उहदा नाम दिता गया महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, और स्टैबलिश किया गया स्टेट ऑफ नाइजर दे विच। ये बल्कि वैसटर्न अफ्रीका दे विच है, और खास तौर पर भारतीय उतों दे भारत का इतिहास बड़ा संबंधित है। और यह किया गया 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के तौर पर। यह पहला सेंटर होएगा अफ्रीका दे विच जिहड़ा कि ग्रैंड असिस्टेंट्स किया गया मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा। और ये इंडियन और फॉरेन मिनिस्टर का जो गल बल्कि अफ्रीका का है, वो घनिष्ठ संबंध होर भी ज़्यादा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने आप फटाफट। 33वां क्वेश्चन की कहता वा, नाम दसना या फस्ट इंडियन टैलीकॉम ऑपरेटर दैट रिसेंटली लॉन्च UPI मतलब यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट स्पेस, वो किहड़ी टैलीकॉम कंपनी हैगी है, तो ये हैगी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के तहत भी तुसीं हुण अपनी पेमेंट कर सकते हो, जियो पेमेंट के नाम से इन्हां दी ऐप आउंदी है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीयल लिमिटेड जिन्होंने रील के नाम तो जानते हैं, फस्ट इंडियन टैलीकॉम ऑपरेटर टू लॉन्च UPI। ठीक है, पहली टैलीकॉम कंपनी है जिन्हें अपनी UPI प्रोसेस शुरू की है। जितों तक गल करते हैं, बल्कि जो गूगल पे है चाहे पेटीएम है, चाहे इस तो अलावा आप गल करिए बल्कि एयरलेट नॉट एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो अलग प्रोसेस है। बल्कि रिलायंस जियो विल बी कंप्लीट विद द अदर प्राइवेट UPI पेमेंट प्रोवाइड सच एज द पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, इन्हां दे नाल ही उदा ही प्रोसेस ही रहेगा। ठीक है, जियो एक भारत का लार्जेस्ट टैलीकॉम ऑपरेटर नैटवर्क है जिसने ये प्रक्रिया शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाम दसना है तुसीं किसी का, मेरा नहीं दसना, तुसीं नाम नेम दसना है। पहली वीमन कौन है, और 13वीं प्रेजिडेंट ऑफ ग्रीस। ठीक है, हु इलैक्टेड ऑन जनवरी 22 नूं, जिन्होंने इलैक्ट किया गया। छाप लो अपने दिमाग से, क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे तुसीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम जाओ, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम जाओ, बहुत सारे एग्जाम्स है, मैं हज़ारां तुहानूं नाम लैके दस सकदा वां, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल मेरियां सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहणगे। तो दोस्तों इहदा जो नाम होएगा, देखो यार बहुत ही तुहानूं अच्छे तरीके नाल नाम याद रख देना है। भारतीय जिन्नियां भी बॉलीवुड इंडस्ट्री च हीरोइन है, सब तो बेहतरीन डांस है जिहड़ा प्रेजेंट टाइम दे विच गल करदे हैं। वैसे तो खैर माधुरी दीक्षित है, उन्होंने कौन पछाड़ सकता है, ठीक है, अपना अपना रोल रहा, लेकिन प्रेजेंट टाइम की गल करते हैं आप, तो खास तौर पर कैटरीना का बहुत ज़्यादा डांस मन्निया जाता है। ठीक है, तो तुसीं याद रखो कि कैटरीना है, उन्होंने एक पहली वीमन है, और प्रेजिडेंट उन्होंने ग्रीस का बना दिता गया। तो कैटरीना थोनों सिर्फ मैं ट्रिक दसांगा याद करने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुसीं ले लो तीजा, तो कैटरीना। ठीक है, इन्हां दा नाम तुसीं शॉर्ट फॉर्म तो भी याद रख सकते हो, कैटरीना शकेला नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 बल्कि बेसिकली गल करिए तो इन्हां दी उम्र तो 63 साल है, बट कैटरीना कैफ की उम्र इन्नी नहीं है बाय द वे। और पहली वीमन है
जो कि ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਐਥੈਂਸ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। चलिए नोट डाउन कर सकते हो तुसी। चलिए वेरी गुड, दसो सारे स्टूडेंट दसो प्लीज़ ठीक है। अच्छा शाबाश, कम ऑन क्विकली यार, क्विकली शाबाश, वेरी गुड। तो इहदा सही आंसर की होएगा? सब तो पहले तो सही आंसर दसो तुसी। तो इहदा जो सही आंसर होएगा हसन दायब है जिन्हां नूं प्रधानमंत्री बनाया गया। हसन दायब नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इत्थों की कैपिटल की गल करते हैं तो बेरूट इत्थों की कैपिटल है की ना, बेरूट याद रखो, बेरूट कैपिटल है। और करंसी की गल करते हैं तो लेबनीज पाउंड इत्थों की है करंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने माइकल, हाँ चलिए गाइस वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। लेबनन के प्रेजिडेंट माइकल नेन एबोन्स ने अनाउंस किया है, यानी प्रेजिडेंट उतों ने प्रेजिडेंट ने अनाउंस किया, प्रेजिडेंट का नाम की है माइकल नेम। उन्होंने अनाउंस किया है कि नवी गवर्नमेंट के तहत एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेक्ट सीगा उहदे लास्ट सैवरल मंथ के मुताबिक ठीक है, उन्होंने फैसला लिया है कि नवे प्रधानमंत्री बना दिते जान। 60 साल की उम्र है, ओल्ड प्रोफैसर रहे ने अमेरिकन यूनीवर्सिटी बेरूट के विच ठीक है, अपनी राजधानी दे विच। उन्हां दा नाम है हसन दियोब। उन्हां नूं प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिता जा रहा है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने हैं। नाम दसना मैं स्टेट गवर्नमेंट का, तुसीं स्टेट गवर्नमेंट का नाम दसना है। दैट द सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स 2019 ठीक है। तो 2019 के मुताबिक तो इसका नाम की होएगा गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर है गुजरात, क्विक आंसर होएगा, नोट डाउन कर सकते हो ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट 2019 रिपोर्ट, गुजरात गेन टू द टॉप स्पॉट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन एंड पावर एंड री गवर्नेंस सैगमेंट के तहत। तो गुजरात बिल्कुल सही आंसर होएगा। 2018 रिप्लेस 2018, बल्कि इन्हें लीड रोल किया है वेस्ट बंगाल नूं करके। सब तो पहले गल करते हैं, वेस्ट बंगाल 104 प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र दूजा नंबर आउंदा 50 प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल के 20 प्रोजेक्ट है जो तीजे नंबर पर है। नैक्सट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर दे रखे थर्ड इंपॉर्टेंट 37 है। पहली बल्कि मोटर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एंड हु वॉज अवार्डेड विद द राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2020 ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के तहत किन्होंने दिता गया तो यश नाम रखना है, यश आराध्या। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने कन्फर्ड किया है 2020 एनुअल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 49 बच्चों को दिता गया जिन्हों की उम्र 5 तो लैके 18 साल के विच सी नवी दिल्ली के विच। और यश आराध्या है 17 साल का बल्कि है, बेंगलुरु के कर्नाटका दे ने। इन्हों ने हिस्टरी बनाई, बिकमिंग द फस्ट मोटर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी टू अवार्ड दिता गया इन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत। चलिए 38वां क्वेश्चन की कहता वा फटाफट देखांगे। विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड इंडियन सिटी है, लगभग 322 ठीक है। इत्थों का माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर बल्कि इत्थों का पोल्यूटेड है। और PM10 पर्टिकुलर मीटर पोल्यूटेड 2018 एज द ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ऑफ 2018 के मुताबिक है। तो दोस्तों ये हैगी है बल्कि झारिया झारखंड ठीक है, झारिया झारखंड याद रखना है। ऑप्शन नंबर होएगा 5वां झारिया झारखंड होएगा, बल्कि दिल्ली दे विच है। तो दिल्ली दे विच एक स्पैशल आप कह सकते हैं कि लगभग अक्टूबर के समथिंग ये पोल्यूशन होंदा आ। और खास तौर पर किसी भी सिटी दे विच मैट्रो सिटी दे विच पोल्यूशन उतों की है इंडस्ट्री का करके ज़्यादातर होंदा है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने आप 39 की है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटलेक्चुअल माफ़ करना जरा इंटैलीजेंस यूनिट 12th एडिशन ऑफ द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक इन पॉपुलर प्रोटेस्ट। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो आंसर होएगा ये है 51st है, 51st यानी 51वां ठीक है, 51 रैंक हैगा इंडिया का। और नॉर्वे की गल बल्कि इंडिया की रैंक है, बल्कि नॉर्वे की गल करिए तो नॉर्वे पहले नंबर पर है जिसका स्कोर हैगा लगभग 9.87। और आयरलैंड की गल करते हैं तो उतों का है 9.58। स्वीडन तीजे नंबर पर और भारत 51 नंबर पर है ठीक है। 165 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ठीक है, वह है 165वां नंबर। और सब तो अखीरला है 167 नॉर्थ कोरिया का है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ਭਾਰਤੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਾਮ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਾਮ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਚਾਪਚਾਰ ਕੁੱਟ ਰਿਸੈਂਟਲੀ, ਚਾਪਚਾਰ ਰਿਸੈਂਟ ਕੁੰਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਅਸਮ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਪਚਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕਦੇ? ਚਾਪ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੇ ਮਜ਼ਾ, ਰੇ ਰਾਮ ਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ याद रखना है, ਚਾਪਚਾਰ ਕੁੱਟ। ठीक है, चलिए भाई। तो इन्हों थोड़े निमोनिक्स बना के तुसी याद रख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम दी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सीगा, कमेटी बनाई गई सी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो कि चीफ मिनिस्टर उत्थों ने कौन ने? जोरामथांगा। ठीक है, आ भी तुसी याद रख लियो भी, जोरामथांगा इत्थों के चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है, चापचार जो कुट है बिगेस्ट और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसटीवल होंदा है मिजोरम का। ये 6 फरवरी बल्कि 6 मार्च नूं होएगा ये। ठीक है, तो कंटिन्यू चलता है और इत्थों की बेसिकली थीम भी बनाई गई है, प्रमोशन ऑफ मिजोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने आप। क्वेश्चन नंबर 46 है, 42 नंबर क्वेश्चन दे रखे कि हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर कौन ने? आंसर तुसी थल्लों चीट कर ही लिया, तो इसका जो नाम होएगा जेपे सबस्टीन कॉफेड। ठीक है, तो तुसी याद रखते हो सबस्टीन डेनमार्क दे ने। ठीक है, तो याद रखना इनू। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, किहड़ी कंट्री है इन्हां चों? नैक्सट कंट्री देखना आप, विच कंट्री हैज़ ए ऑपरेशनाइज्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप 500 मीटर द अपर्चर द स्फीरल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट। क्लीयर है रिसेंटली। तो इंडिया, चाइना, रशिया, जापान। तो यदा जो सही आंसर होएगा चाइना ही तुसी याद रखियो। ठीक है, चाइना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा इस आंसर। चाइना ने ऑपरेशनलाइज्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप विद द डायमीटर ऑफ हाफ ए किलोमीटर 500 मीटर, जो कि यदि आप कहांगे कि अपर्चर जो स्फीरल रेडियो टेलीस्कोप होंदा है ना, वो इन्हां दी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चाइना बिल्कुल राइट आंसर होएगा। नैक्सट है प्रेजिडेंट बताना है तुसी की प्रेजिडेंट का नाम होएगा। दोस्तों ये तुहानू 4-5 क्वेश्चनस मैं देवांगा फॉर ए होमवर्क, तो तुसी इन्हां नू अच्छे तरीके नाल, बल्कि ऑप्शन भी तुहानू अवेलेबल ने, अच्छे तरीके नाल लर्न करने हैं और लर्न करके तुसी यह दसना वा इस सैशन के एंड तो ऑफ होने तो बाद कि तुहानू यह सैशन किद्दां लग्या, कितना मज़ा आया, कितना ज़्यादा तुसी ग्रेन किया, कितना ज़्यादा ग्रैब किया तुसी, तो क्विकली और फटाफट आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए प्रेजिडेंट दसना तुसी गोटेमाला के प्रेजिडेंट कौन ने? तो तुसी याद रखना है अजेनधारो। ठीक है, या अले, इन्हां दा नाम दूजा भी याद रख सकते हो, अजेनधारो अलेजांद्रो। तो मैं पूरा नाम तुहानू दस रहा वां, तुसी नोट डाउन कर सकते हो। तो अलेजांदारो तो भी तुसी नाम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स लिए ईजी होएगा लर्न करना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुहानू पूछा जा रहा है, इन्हां चों किहड़ा स्टेट है जिहड़ा सैलीब्रेट कर रहा है माघ बिहू फैसटीवल रिसेंटली। ठीक है, तो माघ बिहू कित्थे हुंदा है? असम दे विच हुंदा है। तो तुसीं इहदा आंसर की टिक कर सकते हो, असम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बल्कि असम है, जनवरी की गल करते हैं, माघ 15 जनवरी के समथिंग है, और बल्कि ये ऑस्पीसीस हारवेस्ट फैसटीवल होंदा है बीइंग सैलीब्रेटेड इन असम होंदा है। माघ बिहू फॉल्स इन द लगभग लोकल मंथ ऑफ माघ दे विच होंदा है, ड्यूरिंग मिड जनवरी दे विच आपां गल दसांगे तुहानूं, मिड जनवरी दे विच होंदा है। और इसनूं बल्कि भुगाली बिहू भी कहा जाता है, या आपां कह सकते हैं कि माहौर बिहू भी इहनूं कहंदे हैं। तो एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है, बस तुसीं बिहू के नाम तो याद रखना है, फैक्ट्स तुहाडे लई इंपॉर्टेंट बनते हैं। 46 है, हैडकुआटर तो उन्होंने पूछा गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हैडकुआटर दसना कित्थे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड दे विच आंसर सही होएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47, रवि कुमार दहिया इज सीन ए न्यू रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। रवि कुमार जो दहिया है ना, यह न्यूज़ दे विच रहे काफ़ी बार, किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? दोस्तों इसका आंसर फटाफट टिक कर दो, तो यह होएगा रैसलिंग। ऑप्शन नंबर चौथा आंसर होएगा
61 किलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ, ठीक है। रवि कुमार दहिया हरियाणा तो बिलोंग करते हैं, ये भी तुसी याद रखना है। चलिए 48th नंबर क्वेश्चन है, डायरैक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किहड़े ने? तो डायरैक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे की गल करी तो श्री SN मैशराम, श्री SN मैशराम, तो इन्हों का नाम याद रखना है, श्री SN मैशराम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49, आज दी सीरीज का सैकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम दैट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मई 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਇਹਦਾ जो आंसर होएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 2 होएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, वेयर इज द हैडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी लोकेटेड। तो मतलब इन्हों का हैडक्वार्टर कितने है? 5 ऑप्शन तुहानूं दिते गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होएगा हैदराबाद तेलंगाना, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद तेलंगाना दे विच ऑप्शन है, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली भी टिक करनगे, बट इदां दा नहीं है। दोस्तों तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता इस सैशन च, मैं तुहाडा शुक्रिया करांगा। चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब करना है, और तुहानूं सौं लगेगी तुसीं 10-10 जणियां तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैशन। PCS और इस तो अलावा पंजाब पटवारी, चाहे तुसी हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर का पेपर देने जाओ, या बहुत सारे पेपर होर भी ने, ठीक है। इन्हां दे संबंध च बहुत सारे तुहानूं फैक्ट्स मिलणगे। मैं मिलांगा चौथे पार्ट, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।